Good morning, all of you. Myself, Dr. Mehek Bhatia, welcome you all in the webinar series organized by Nirvana University in collaboration with the Global Foundation for Skill Development and Entrepreneurship. Today, we have Mr. Ritesh Dhawan with us, and he will be with us today. I briefly introduce, before we move ahead to the webinar series, to a brief profile of Mr. Ritesh. Mr. Ritesh is an entrepreneur, a new media specialist founder, and CEO of Influencer Lifestyle. Over the last 2 decades, he is an astute and SMN professional with a keen aptitude of spotting trends and connecting high technology with masses. He worked as an advertising consultant for Tata Motors. He also worked with some of the renowned telecom companies, namely Bharti Airtel, BlackBerry smartphones, and so on. He is a motivational speaker and has been mentoring entrepreneurs in making the decisions over the last 5 years. He supported over 20 young entrepreneurs to start their professional journey. Today, Sir is going to provide us an insight on the topic, the new media revolution in India. Over to you, sir. Thank you so much for having me over, and very pleased to be connected with the audience at Nirvana University and outside as well. I have had the good fortune of visiting your campus in 2021 in December, and my deepest compliments to the entire university and the management to have created such a unique destination for students to engage and learn. So very, very happy to be here, and let's begin with your permission. Okay. Okay, so I think you guys have already received an overview about me, but just to add a little bit before we start the presentation. So, you know, every professional has one, motivation which drives them throughout their life. And I think that one motivation that has kept me going all these years is the fact that I find it extremely satisfying to connect new technology with the masses. So this presentation that I have brought in front of you is a product of an enterprise that I run and manage. I'll be happy to engage about what we do, how we do. If anybody is interested there, you can probably circulate my coordinates. But largely in this presentation, we will be talking about how social media can help everybody, people around us, whether they are from business stream, whether they are from technology stream, whether they are researchers, whether they are any kind of educational or professional people, how can they leverage social media to their advantage? Mostly, you may have heard about people talking about social media as a parlance of connecting with people and, connecting with friends and family and reaching out to those people who are close to us, who we know in the physical world and sometimes beyond it. But the fact is that in today's terms, social media has become not just another media, but it has become the media. It is the destination for everyone to go and see. So this presentation is all about that. If there is any out of context things that you hear, I will be happy to answer questions, or you can write to us as well. So here we are talking about the new media revolution, and let me start with a few definitions. So a revolution is something that compels a mass of people, a large mass of people to rise. When I say rise, means professionally, socially, economically, and mentally. So this is what the definition of a revolution is. I'm not using this word in a very loose term. I really mean it. Like, for example, the last big revolution, or the first, should I say, the big revolution that India saw was the freedom movement, because of which 1947 we achieved our freedom, and that was a revolution. So it impacted everyone. So this is that scale and size that I'm talking about, and I will share more details as we go forward. I think 2020 onwards, since the time the pandemic hit us, we have all been under a lot of stress. And all the people who are listening to this webinar,
are acknowledge or will acknowledge the fact that we are actually very grateful to be alive right now, and we are very grateful to have been in a space where we enjoy health and our existence. So I think it's a great learning opportunity for us that has gone by. But in this process, what has happened is that everybody's learned some key lessons, and we've realized that we can't be complacent about some of these things that we have seen it. And one of them is the fact that we can't repeat those mistakes that we were making in the past. Okay, now as such, there are many lifestyle changes that we have endured, but one of the biggest lifestyle changes that people who are not in colleges right now, people who are working like working professionals like me, realize is that you just can't rely on one income source. You can't do that, because for some reason, because of COVID pandemic or because of future calamities that may come and hit us, we need to protect ourselves in a manner where we have more than one revenue sources for ourselves. And I think this presentation has helped you make up some of your mind about how and what can be done. And most importantly, during the time of the pandemic, starting from say March 2020 onwards till end of 2021, one of the things that has happened the most is that digital development or digital deployment has become highly accelerated. Uska kuch examples hai ki mostly people are working from home, so you spend a lot of hours online. So if you compare screens, like our life is governed by screens. You have the TV screen, for example, you have the mobile screen, for example, you have the computer or a tablet screen. So these are all screens. So if you see that you are spending a lot more time on your mobile phone and your computer screen, this is one change. The other thing is that digital workspaces have come up. When I say digital workspaces, means that morning 9 o'clock, you can sit on your desk at home and you can access your work, you can have meetings, you can have discussions. Everything is now possible online. Third is that digital commerce has taken off. So if I was to share some numbers, before 2020, the e-commerce industry was growing at a 24% CAGR, cumulative average grade point. Now it is growing at a 37-38% rate, which means that more number of people, more Indians are now buying online, and they are utilizing digital media as a means to discover new products. This is a very big change. Being in telecommunications industry for a very long time, since 2008, we have been talking about the digital revolution coming in India, digital revolution coming in India. Fact of the matter is that right now we are in the middle of the digital revolution. Right now, it is happening as we speak. Now, what is this digital revolution? In order for us to understand it, we'll have to look at the back story. थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हुआ. तो India is a very dynamic country. I mean, I am very proud to be an Indian, and the fact is that in the last 20 years, there has been a generational leap that we have taken. And हमारी country में क्या होता है ना, हम sequence steps में नहीं, जैसे अमेरिका में या इंग्लैंड में या जर्मनी में, फ्रांस में धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई है. फॉर एग्जांपल, जब टेलीकॉम शुरू हुआ था तो लैंडलाइंस सब जगह थे. हमारी कंट्री में आधी से ज्यादा जगह लैंडलाइंस थी ही नहीं. हम लोग सीधा सीधा मोबाइल फोन पे आ गए. तो वी टेक क्वांटम लीप्स, वी टेक क्वांटम जंप्स, कि हम जनरेशन ऊपर जनरेशन हम लोग छलांग लगा देते हैं और पॉइंट ए से सीधा पॉइंट जेड पे चले जाते हैं. तो ऐसा 3 बार हो चुका है हमारे यहाँ पे. सबसे पहली बार हुआ था 2020 में विद द इंफोटेक रेवोल्यूशन. ये सबको पता है that India is one of the largest exporters of software in the world. Companies like Infosys, companies like Wipro, and so many other companies that are from India, they have created what is called a high growth, low cost IT model. और इसकी वजह से क्या हुआ, that the revolution took place in the masses, so that a lot of people who are from common backgrounds, they got an opportunity to learn computer science and to be part of the infotech industry, right? I'm 100% sure that all the people who are listening to this webinar, somebody or the other in their friend circle and family circle will be associated with the IT industry in some form. So that is the level at which the revolution has happened. The second big revolution happened in 2010, which is a telecom revolution.
Now, you may not know, people who are connected, that India is the cheapest telecom model in the world. In the world, we have the cheapest telecom service in the world. What it meant is that we have made available a smartphone right from the CEO to the sabji wala. Everybody today has a smartphone. Everybody today has a data connection. Everybody is today using phone as a medium of communication. And because of this, what has happened is, and there are statistics available online that you can see, that job opportunities have opened up, connectivity has opened up, people are talking and exchanging more, new people are connecting with people who they didn't know before. So it is overall driving our economic development, and it is driving our social development. So this is another revolution. And now we are in the cusp of third revolution, which is a digital media revolution. Now, digital media revolution is where the power of media is now sitting in your hands. You are the media now, right? You have the smartphone, you have a camera in the smartphone, you can shoot a picture, you can shoot a video, and you can post it to anyone and everyone, and you can become the media. And if you are interesting enough, if you have something interesting to tell, then there are a lot of people available who want to listen to you, want to see you, and you want to understand your point of view and perspective. So from this point onwards, we will focus a bit more on understanding this digital media revolution, because सबसे नया है ये, और इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है लोगों के पास. So before we get on to the understanding the media revolution, let me just say that मीडिया का काम क्या है. मीडिया का काम है आप लोगों तक इंफोटेनमेंट पहुंचाना, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, इसका कॉम्बिनेशन होता है मीडिया. चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो मैगजीन हो, या चाहे वो सोशल मीडिया क्यों ना हो. Everybody is trying to provide information and entertainment through media. Okay. Now, in this process, because a lot of people are connected with media, advertisers and brands who want to sell their products utilize those platforms to communicate with you. Okay. अभी कोई भी कम्युनिकेशन जब हमारे पास आती है ब्रांड की तरफ से, तो उसमें तीन चीजों का मिक्सचर होता है. ये आप देख सकते हैं लेफ्ट में, देयर इज एन इंटरसेक्टिंग वेन डायग्राम. सबसे पहला है मीडिया. तो मीडिया ऑब्वियसली एक व्हीकल है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आते हैं इंफोटेनमेंट के लिए. दूसरा है एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग होता है पेड फॉर्म ऑफ मीडिया यूज. तो जब कपिल शर्मा का शो देखते हैं हम लोग टीवी पे, तो कपिल शर्मा प्रोडक्शन का मनी लेता है चैनल से, लेकिन आप नहीं लेते पैसा उस पर. लेकिन कोई एडवर्टाइज करता है जब कपिल शर्मा के शो पे, तो उसको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, बिकॉज पीपल नो दैट इज द हाईएस्ट टीआरपी एंड इट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल आर सीइंग इट. बट एक तीसरी भी चीज है, वो है कल्चर. तो ये क्या है कि आपके जो रूट्स हैं, आपके जो आइडियाज हैं, आपकी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो डिसाइड करती हैं कि ये कम्युनिकेशन जो मीडिया पे एडवर्टाइजिंग आ रही है वो आपके लिए अच्छी है या बुरी है. ठीक है. तो कल्चर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है. हमारा इंडियन कल्चर बहुत ही डाइवर्स है. नॉर्थ से लेके साउथ तक हमारे यहाँ फेमस है कि हर 100 किलोमीटर्स पे लैंग्वेज और फूड चेंज हो जाता है. बट द फैक्ट इज कि हमारे पूरी कंट्री में कुछ बेसिक चीजें हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सब में कॉमन है वो चीजें. तो वो हमारा कल्चर है. और उसकी वजह से ये जो बीच में आप स्टार देख रहे हैं ना, ये स्टार को हर एडवर्टाइजर इंपैक्ट करना चाहता है. ये स्टार है आपका माइंड स्पेस. ओके. माइंड स्पेस का मतलब है कि आपके दिमाग में एक छोटा सा कॉर्नर है जहां पे डिसीजन लेते हैं आप कि आपको क्या नहीं चाहिए और क्या आपको चाहिए. उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं या उसको वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं. तो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस मीडिया. एंड दिस प्रिंसिपल कैनॉट चेंज एवर. चाहे कोई टेक्नोलॉजी आए, चाहे कोई मीडिया आए, ये कॉन्सेप्ट हमेशा एवरग्रीन रहेगा. ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. इसको समझाना मुझे जरूरी महसूस हो रहा था. तो इसको मद्देनजर रखते हुए देखते हैं कि रेवोल्यूशन कैसे हो रहा है इंडिया. क्विकली देखते हैं टाइमलाइन मीडिया की, कि मीडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुआ है. सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़पेपर की. सबसे पुराना मीडिया है. कुछ डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूं. न्यूज़पेपर सबसे पहले 1779 में कोलकाता में प्रिंट हुआ इंडिया में, और आज की डेट में
26 मिलियन कॉपीज हर दिन न्यूज़पेपर की छपती हैं और 43 मिलियन इंडियंस उसको पढ़ते हैं रोज। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1757 से लेके आज तक कितने ही साल, मतलब इट्स बीन मोर देन 300 years. But the fact of the matter is that today and after COVID, there is a very, very deep impact on advertisers wanting to utilize newspaper as a medium of choice. मतलब इश्तिहार, जो एडवर्टाइजमेंट्स हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, अब उनकी वैल्यू उतनी नहीं रह गई है जितनी पहले रहती थी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि 67% फॉल हुआ है सर्कुलेशन में। उसका कारण क्या है? ये भी है कि इन्फेक्शन का डर, कोविड के इन्फेक्शन का डर, और कोविड के चलते जब लॉकडाउन वगैरह हो गया था उस वक्त प्रॉब्लम ये हो गई कि लोगों ने न्यूज़पेपर लेना ही बंद कर दिया था। और अब क्योंकि हमारा सिस्टम खुल गया है, अब हमारी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह खुल गया है, उसके बावजूद भी न्यूज़पेपर उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा जिस लेवल पे से 2019 या 2018 में था। ओके, और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजिंग रेट्स बढ़ गए हैं लेकिन उनकी वॉल्यूम बहुत कम हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। बट उसके पहले मैं एक बता दूं कि न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट्स हम देखते हैं, हमको वो एडवर्टाइजमेंट्स देखने नहीं होते, वो वहां इसलिए होते हैं क्योंकि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। भाई हमें अपने शहर की, अपने कंट्री की, अपने दुनिया की हमको पता करना है यूक्रेन और रशिया के में जो वॉर हो रही है उसका क्या रिजल्ट है, या हमको ये देखना है कि कौन सी स्टेट में कौन सा इलेक्शन हो रहा है, या इंडियन क्रिकेट टीम ने कल कैसा मैच खेला, हमें ये सब देखना है। बट हमको मारुति का ऐड नहीं देखना वहां पर। लेकिन वो मारुति का ऐड हमें दिखाया जाता है जबरदस्ती क्योंकि हम वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया है इंट्रूसिव, इसको जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा रेडियो की। ठीक है, एवरीबडी नोज रेडियो, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। सबसे पहला रेडियो स्टेशन इंडिया में खोला था 1930 में। ये मैं डेट्स क्यों बता रहा हूं इसके बारे में भी बात करेंगे। 2001 में, यानी कि आज से 22 साल पहले, एफएम बैंड रेडियो लॉन्च हुआ। और उसके बाद सब जानते हैं कि रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, बिग एफएम, इतने सारे कई सारे चैनल्स, एफएम चैनल्स हमारे यहाँ आ गए और 51 मिलियन लोग रेडियो सुनते हैं हर रोज। 51 मिलियन। और एवरेज इंडियन जो है वो दिन में 16 मिनट रेडियो सुनता है, ऐसे स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन इस मीडिया में भी कोविड का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है और एज ऑफ टुडे 44% ऑफ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो रेडियो पे आता था अब वो नहीं आता। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा रेड फ्लैग बताता हूं कि अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू या उसका प्रॉफिट 44% गिर जाए ना, तो उसके यहाँ पे नौकरियां चली जाती हैं। वो इतना रेडिकल चेंज है कि वो इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो आप समझिए कि इस समय रेडियो और न्यूज़पेपर के ऊपर कितना प्रेशर है रेवेन्यू का। ओके, और कुछ बातें हैं जैसे कि रेडियो के जो लिसनर्स हैं अमूमन वो ज्यादातर 35 के ऊपर की उम्र वाले लोग हैं, यानी कि जो यूथ है हमारी कंट्री का वो ज्यादातर रेडियो नहीं सुनता। और एक बात और है कि ज्यादातर जो लोग रेडियो में एडवर्टाइज करते हैं या जो उसको यूज करते हैं एज अ मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग, वो रीजनल ब्रांड्स होते हैं, ना कि नेशनल ब्रांड्स। अब जैसे अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में जैसे कोई रेस्टोरेंट है या कोई बिल्डर है या कोई मॉल है तो उसकी एडवर्टाइजिंग आपको ज्यादा सुनाई देगी रादर देन कोलगेट, पामोलिव या भारती एयरटेल या किसी जो नेशनल ब्रांड्स हैं उनकी कम सुनाई देती है। तो ये भी मीडियम जो है वो इफेक्टिव नहीं रहा है। इसमें भी आपको इंट्रूसिविटी का सामना करना पड़ता है, इसमें भी आपको इश्यूज आते हैं जैसे कि भाई मुझे नहीं लेनी है कोई प्रॉपर्टी या मुझे अगर फ्लैट नहीं खरीदना है फिर भी वो मुझे बता रहा है कि भैया जयपुर के आउटस्कर्ट्स में देयर इज दिस न्यू प्रॉपर्टी दैट हैज कम इन, इट्स इंट्रूसिव। ठीक है, हर एड मेरे लिए नहीं है। चलिए इसकी नेक्स्ट बात करते हैं और ये सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा मीडियम है अभी तक का, विच इज टेलीविजन। तो टेलीविजन की शुरुआत इंडिया में हुई 1959 में, मगर रियली टेलीविजन जो अपने स्टेचर पे आया वो आया 1992 से लेके 2001 के बीच में, जब डीटीएच शुरू हुआ। जैसे आजकल हम देखते हैं
टाटा स्काई, जी टीवी, स्टार टीवी, सोनी टीवी, कितने चैनल्स हैं, रीजनल भी हैं, नेशनल भी हैं, बहुत सारे चैनल। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज की डेट में टेलीविजन सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचता है एज अ मीडिया। तो ऑलमोस्ट 836 मिलियन लोगों के पास टीवी पहुंचता है हर दिन। और इससे क्या हुआ है कि 50% ऑफ इंडियंस जो है वो रोज टीवी देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा मीडिया है, ठीक है। इस मीडिया में भी पैंडेमिक के बाद 9% व्यूअरशिप गिर गई। टीवी लोग नहीं देख रहे। टीवी का मतलब है नॉट Amazon प्राइम एंड नेटफ्लिक्स, इसका मतलब है स्टार टीवी, जी टीवी, सोनी टीवी और इस तरह के जो चैनल्स हैं उनमें काफी गिरावट आई है। और साथ ही साथ जो हमारे कंट्री का सबसे बड़ा टीवी चैनल है वो है दूरदर्शन। आप माने या ना माने, दूरदर्शन सबसे ज्यादा लोगों के घरों में पहुंचता है आज भी, केबल टीवी के जमाने के बावजूद भी। तो दूरदर्शन ने 2020 में हमें बताया कि 22% उनका एड रेवेन्यू गिर गया। देखो मैं आपको समझाऊंगा, 44% रेडियो का रेवेन्यू गिर गया, 22% टीवी का रेवेन्यू गिर गया, और हर साल इसका बेस जो है वो 3% से डिग्रो होता चला जा रहा है। मतलब लोग हटते चले जा रहे हैं टीवी से ही। और टीवी में भी एक लेवल पे मैं बोलूंगा कि लेवल ऑफ इंट्रूसिवनेस है। क्यों? हमें हर वो एड नहीं देखना जो हम देखते हैं वहां पे, हमको धक्के से, भाई हम तो कपिल शर्मा का शो देखने के लिए बैठे हैं, हम एड देखने के लिए थोड़ी ना बैठे। तो क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो माइंडसेट है ना कि हमें ये एड नहीं देखना, ये एड हमें नहीं देखना, ये हमको पिछले 10-15 साल से हमको रियलाइज हो रहा है। आई एम श्योर कहीं ना कहीं आप लोगों को भी रियलाइज, अरे एक ही एड को 7-8 बार दिखाने का क्या मतलब है, दिखाते हैं लोग। तो दैट इज द नेचर ऑफ इंट्रूसिवनेस। अब आ जाते हैं डिजिटल मीडिया पे, ठीक है। तो डिजिटल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, इस तरह का मीडिया है। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो इंडिया में लगभग 2008 के अराउंड हुई, जब 3G डेटा हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ। 3G डेटा के आने से हमारी बैंडविड्थ बढ़ गई, वीडियो स्ट्रीमिंग, म्यूजिक स्ट्रीमिंग पॉसिबल हो गया, और सोशल मीडिया और ज्यादा तेजी से डेवलप होने लग गया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब इतना बड़ा बड़ा बेस उन्होंने बनाना शुरू कर दिया कि आज की डेट में मेरे ख्याल से 700 मिलियन या 800 मिलियन से ज्यादा इंडियंस ये कनेक्ट करते हैं। और मजे की बात ये है कि 16 मिनट रेडियो सुनते हैं, वो एक बात अपने मन में रखिए, बट यहां देखिए कि 24 घंटे में से 6% आपका टाइम आप यूट्यूब पे बिताते हैं आज। 6%, यानी कि घंटों की बात कर रहा हूं मैं, मिनटों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, घंटों की बात कर रहा हूं। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज, सिंपल बात बता रहा हूं आपको, कि भाई आप रेडियो नहीं सुन रहे, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, आप टीवी नहीं देख रहे, तो आप देख क्या रहे? आप इंटरनेट देख रहे। और ब्रांड्स को ये बात पता है कि काफी सारे कस्टमर्स जो हैं वो पुरानी मीडिया को छोड़ के अब नई मीडिया की तरफ आ चुके हैं। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट टुडे, इन टुडेज टाइम, द मीडिया एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज वर्थ 70,000 crore rupees, out of which 45% of that revenue, which is around 32,000 crores, is going to spend on digital. तो डिजिटल मीडिया में भी मैं बोलूंगा कि वो लेवल ऑफ इंट्रूसिवनेस है, जहां पे आपको, आई एम श्योर आपने देखा होगा यूट्यूब में कोई वीडियो आप खोलते हो तो उसमें पहले ऐड आता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी आंख तुरंत जाती है उस स्किप बटन के ऊपर कि कब वो 5 सेकंड खत्म हो और वो स्किप करें और हम अपना वीडियो देखें, हमें ऐड नहीं देखना। तो वो भी एक तरह से वो इंट्रूसिव ही कहलाएगा। क्विकली देखते हैं एक बार कि ये ट्रांजिशन कैसे हुआ है। सो 10 सालों का एक टाइमलाइन मैं आपको दिखाता हूं। तो 2010 में टोटल मनी स्पेंट ऑन डिजिटल एडवर्टाइजिंग वाज ओनली 15%, और आज की डेट में इट हैज बिकम 45%। और अगर ग्रुप एम की माने, ग्रुप एम इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है जो मीडिया खरीदती है और बेचती है, जो सारे बड़े ब्रांड्स के साथ काम करती है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी है। वो बोलती है कि 2022 में, यानी कि इसी साल, डिजिटल जो है वो बाकी मीडिया से आगे निकल जाएगा सेल्स में, रेवेन्यू सेल्स में, मतलब एडवर्टाइजिंग सेल्स में। तो फ्यूचर जो है वो डिजिटल ही है, मीडिया जो हमारे फ्यूचर का है वो डिजिटल ही है। ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए, साफ हो जानी चाहिए। कुछ फैक्ट्स के बारे में ध्यान देते हैं, कुछ एनालिसिस मैंने किया है। तो सबसे पहला एनालिसिस ये है कि व्हेन इट इज टेकन 50 years, 30 years, 100 years
फॉर अदर मीडिया टू कम टू देयर पॉइंट ऑफ पिनिकल जहां पे हम बैठे हैं। डिजिटल मीडिया ने यह सफर केवल 10 सालों में तय किया, जहां पे बाकी मीडिया को 30, 40, 50 साल लग गए, हमने ये डिजिटल वालों ने सिर्फ ये सफर 10 सालों में तय किया। दूसरा मैं पॉइंट बोलूंगा आपको कि ऑलरेडी हमारे मन में एक रोड मैप है भाई, सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग, मेटावर्स, ये सारी चीजें हमें पता है, और ये सारी की सारी चीजें आगे आने वाले समय में डिजिटल मीडिया को और आगे ले जाएंगी। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा कि जो एडवर्टाइजिंग है ना वो आज भी इंट्रूसिव ही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई ब्रांड करोड़ों रुपए खर्च या लाखों रुपए खर्च करके अपनी कम्युनिकेशन नॉर्मल लोगों को बताता है, दिखाता है, तो उसका पर्पस सॉल्व ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप तो बैठे हो बस वो 5 सेकंड का बटन दबा दिया, 5 सेकंड में आपके दिमाग में क्या जाएगा, आपको क्या समझ में आएगा कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो वो वहां पे फेल हो रहा है वो। तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव है, इसका क्या वाया मीडिया है, उसके बारे में हम जरा बात करते हैं। तो टीवी जब हम देखते थे पहले, तो क्रिकेट मैच आ रहा है, बीच में कोई आउट हो गया तो बीच में ऐड दिखा देते थे। हम क्या करते थे, हम बोलते थे अरे रुको यार कुछ स्नैक खा के आते हैं, या एक जरा फोन कॉल कर लेते हैं, या एक जरा वॉशरूम ब्रेक ले लेते हैं। रेडियो में कोई ऐड आता तो बोलते हैं कि अरे चैनल बदल दो। न्यूज़पेपर में कोई ऐड आता है तो हम लोग पन्ना पलट देते हैं, और यूट्यूब में कोई ऐड आता है तो हम 5 सेकंड में हटा देते हैं। तो ये है नेचर ऑफ इंट्रूसिवनेस, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एडवर्टाइजर्स के लिए, क्योंकि एडवर्टाइजर्स का काफी सारा पैसा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो चीज बताना चाहते हैं आप वो देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप तो हो ही नहीं टीवी के सामने या रेडियो के सामने या अपने मोबाइल के सामने, आपने तो स्किप कर दिया। तो जो माइंड स्पेस आपकी है, जो स्टार वाला डायग्राम मैंने वेम डायग्राम बताया था, वो माइंड स्पेस उन्हें मिल ही नहीं रही, और उनका काफी सारा लॉस होता ही चला जा रहा है। तो इसको जो सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम है, वो हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करें तो डिजिटल मीडिया में एवरीथिंग इज ऑन डिमांड। मतलब वहां पे क्या है, दूरदर्शन या जब हम टीवी देखते थे तो भाई 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक एक प्रोग्राम आ रहा है, हमको वही प्रोग्राम देखना है। अगर हमें वो प्रोग्राम नहीं देखना है तो हमें टीवी बंद करना पड़ेगा या चैनल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेट में ऐसा नहीं है, इंटरनेट में हम जो चीज जब देखना चाहें तब हम वो देख सकते हैं। तो इट इज एन ऑन डिमांड। ये ऑन डिमांड जो है ना एलिमेंट, ये है डिजिटल मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और इस बारे में एक बार और चीज कुछ एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। आप लोग ये बात समझते होंगे कि google.com जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जनरेटिंग डेस्टिनेशन, ऑनलाइन डेस्टिनेशन है। सबसे ज्यादा लोग हर दिन गूगल के इस साइट पे आते हैं, जो पेज आपको दिख रहा है, ये सबको पता है इस पेज के बारे में। तो क्वेश्चन ये है कि अगर सबसे ज्यादा लोग इस पेज पे आते हैं तो इस पेज पे गूगल एडवर्टाइजिंग बैनर क्यों नहीं चलाता? वो इसलिए नहीं चलाता है क्योंकि उसको पता है कि आपका नेचर जो है वो एडवर्टाइजिंग के खिलाफ है। जब आप उसमें कीवर्ड डालेंगे ना कि वेयर कैन आई बाय अ कार या रेस्टोरेंट नियर मी, तब वो आपको बताएगा कि अच्छा ये इसमें एडवर्टाइजिंग ऑप्शन जो ऊपर के 3 आते हैं, तब आपको वो बताता है। वो उसके पहले बोलता ही नहीं है कुछ आपको। सिमिलरली नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स आपसे पैसे लेता है, जो भी है 199, 499, 999। एक बार उसने वो आपसे पैसे ले लिए, फिर वो आपको ऐड नहीं दिखाता। ठीक है, एंड सिमिलर थिंग इज विद अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई एंड सो मेनी, यूट्यूब, प्राइम, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑन डिमांड पे काम करती है, राइट? तो ये ऑन डिमांड का जो है वो सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, क्विकली देखिए कि जो डिजिटल में पैसा खर्चा हो रहा है वो सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है वीडियो पे, सोशल पे और डिस्प्ले पे। लेकिन जब आप अपना मोबाइल फोन खोलते हैं, जब आप अपना कंप्यूटर खोलते हैं, तो वहां पे आपको 2 तरह के कंटेंट्स दिखाई पड़ते हैं। एक वो होता है कंटेंट जो टीवी में देखते थे हम लोग, ऐड, वही ऐड अब इंटरनेट पे हमें दिखाते हैं, तो उसको मैं बोलता हूं ब्रांड जेनरेटेड कंटेंट। ब्रांड जेनरेटेड कंटेंट मतलब ब्रांड ने पैसे खर्च करके वो फिल्म बनाई है और वो फिल्म आपको दिखाई जा रही है। और दूसरा होता है जिसको मैं बोलता हूं यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जनरेटेड कंटेंट वो होता है जो आप और हम घर में बनाते हैं, जैसे कि आजकल काफी पॉपुलर हो गया है। अब सवाल यह है कि ऑलरेडी
35% जो डिजिटल मीडिया पे जो चीजें एडवर्टाइज होती हैं उसमें से 35% ऑलरेडी वो यूजर जनरेटेड कंटेंट दिखता है। और जैसा कि आप मेरे ग्राफ में देख सकते हैं, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी अ ग्राफ। सो टुडे more than 12 million people are watching or 12 million views are being generated every month on user generated content। इसका मतलब लोग ब्रांड का बना हुआ कंटेंट नहीं देखना चाहते। ब्रांड्स को नहीं चाहिए कि आप अरे यार एक और ऐड आ गई, अरे यार अब छोड़ो यार, नहीं चाहिए। उसके ऑपोजिट में अगर कोई इंडिविजुअल अपना कंटेंट बना के डाल रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये फोन यूज किया है तो मुझे रियल में अपना एक्सपीरियंस बताना है कि मेरा फोन में क्या प्रॉब्लम्स हैं या इसकी क्या बेनिफिट्स हैं या इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, वो चीज लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं रियल। तो यहाँ पे दो बड़े शिफ्ट हो रहे हैं। एक शिफ्ट ये हो रहा है कि डिजिटल मीडिया और डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और उसमें यूजर जनरेटेड कंटेंट पे ज्यादा फोकस हो रहा है, जिसकी वजह से आप और मेरे जैसे लोगों का माइंड स्पेस, ये देखिए स्टार जो हम पहले रेफरेंस में दिया था, ये माइंड स्पेस जो है वो अब ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग से हटके अब यूजर जनरेटेड कंटेंट ड्रिवन एडवर्टाइजिंग पे जा रहा है। तो ये एक रेवोल्यूशन का पार्ट है। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स, जो मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने नहीं देखी होंगी। तो टिकटॉक तो खैर बैन हो गया इंडिया में फॉर पॉलिटिकल रीजंस, बट इंस्टाग्राम रील्स अभी भी चल रहा है। यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ पीपल हु आर व्यूइंग इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक वीडियोस इज राइजिंग एंड ओनली राइजिंग। मैं आपको बहुत अमेजिंग बात बताता हूँ, 46% हर साल व्यूज बढ़ जाते हैं हमारी कंट्री की। यानी कि एक तो नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं जो वीडियो देखते हैं, और जो लोग देखते हैं दिन में 5 मिनट वो अब दिन में 50 मिनट देख रहे हैं। तो उसकी वजह से ये बढ़ता ही चला जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं ब्रांड जनरेटेड कंटेंट और यूजर जनरेटेड कंटेंट की। तो थ्योरी तो मैंने आपको समझा दिया, अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं कि यूजर जनरेटेड कंटेंट और ब्रांड जनरेटेड कंटेंट क्या है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा केस स्टडी बनाया है on a new mobile phone that was launched about a month and a half back, which is Samsung Galaxy S22। ठीक है, तो ये देखिए, एक मैं आपको फिल्म दिखाता हूं कि ये ब्रांड जनरेटेड कंटेंट की फिल्म कैसी दिखती है, फिर यूजर जनरेटेड कंटेंट की फिल्म देखिए। ओके, तो ये था ब्रांड जनरेटेड कंटेंट, मतलब एकदम बढ़िया ग्राफिक्स, फटाफट एकदम अच्छा क्रिस्प। और ये है यूजर जनरेटेड कंटेंट। सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। मतलब दोस्तों यहाँ पे आज ये आ गया है हमारे पास में एकदम ऑल न्यू ब्रांड न्यू सुपर स्मार्टफोन। और इनफैक्ट यार मतलब जो हाथ में इसकी फील है पहली, वही काफी एकदम मतलब ना प्रीमियम सी लगती है। खैर यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे इस फोन के बारे में बिल्कुल एकदम अच्छे से एक फर्स्ट लुक को देखते हुए। हम अगर करते हैं दोस्तों शुरुआत यहाँ पे एक फिजिकल ओवरव्यू के साथ में, तो यहाँ पे जो साइड्स हैं वो दोस्तों हमको मिल जाती हैं राउंडेड, जहाँ पे राइट साइड में है ये एक साइड की, जिसके ठीक ऊपर है वॉल्यूम रॉकर। फोन में दोस्तों ऊपर की तरफ एकदम ऐसा फ्लैट प्रोफाइल है, और यहाँ पे हमारे पास में है सेकेंडरी माइक्रोफोन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है, और फोन में नीचे है यार ये जो चीज निकल के आई है फिलहाल अभी गैलेक्सी एस सीरीज में, मतलब नोट और एस की ताकत को लगता है सैमसंग ने कंबाइन कर दिया है, क्योंकि हमारे पास में है ये एकदम बिल्कुल बहुत ज्यादा पावर को अपने साथ में लिए यही ऑल न्यू एस पे। चलिए, तो आई थिंक यू मे हैव गॉट एन आइडिया कि ब्रांड जनरेटेड कंटेंट क्या होता है और यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या होता है। अब मैं आपको कंसिडरेबल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि ज्यादातर लोग जो है वो आज की डेट में ब्रांड जनरेटेड कंटेंट नहीं देखना चाहते। तो यहाँ पे कुछ मैंने चीजें बताई। तो ब्रांड जनरेटेड कंटेंट में बड़ी हाई ग्राफिक्स क्वालिटी होती है, वीडियो प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, इसकी जो कम्युनिकेशन विंडो होती है बड़ी छोटी सी होती है, आपकी एस्पिरेशन को ड्राइव करता है कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, आपको एक्साइट करता है कि हाँ ये कोई नया प्रोडक्ट आया है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है कि आपके दिमाग में बत्ती जलती है कि ओके आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस। तो आप क्या करते हो, आप अपने घर से जाते हो बाजार में, वहां जाके आप बोलते हो अरे भैया सैमसंग का S22 गैलेक्सी फोन हमें दिखाइए। फिर आप वहां खरीदो ना खरीदो, तो ये बड़ी लंबी चेन होती है।
यूजर जनरेटेड कंटेंट में क्या होता है, एक तो कैजुअल है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, उसमें आपको बड़ी रियल चीजें देखने को मिलती हैं, टच एंड फील से रिलेटेड होती है कि जो रियल में यूज कर रहा है आदमी वो अपना ओपिनियन देता है। और जो कंटेंट बना रहा है उसको हम इंटरनेट इन्फ्लुएंसर कहते हैं, वो कंटेंट ऐसे बनाते हैं जैसे कि वो यूज कर रहे हैं खुद, तो उसमें ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है, उसमें एक अपनापन ज्यादा लगता है लोगों को। और इसका डेफिनेटली मेरा डेटा अवेलेबल है कि इसमें लोग जो है वो नो मोर की जगह वहां पे अगर आपकी लिंक प्रोवाइडेड है नीचे तो तुरंत वहां पे क्लिक करके बाय भी कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग कंटेंट देख रहे हैं डिजिटल मीडिया पे, जिसमें कि 45% यानी कि 32,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उसमें ज्यादातर लोग जो है वो यूजर जनरेटेड कंटेंट प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो एडवर्टाइजिंग नहीं करनी। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते हैं कि यार यूजर जनरेटेड कंटेंट से माल तो बिक जाएगा, लेकिन यार ब्रांड तो नहीं बनता है, क्योंकि ब्रांड बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, लाइफस्टाइल इमेजरी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, वो तो नहीं बन सकती ना। तो उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कुछ ब्रांड्स जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूजर जनरेटेड कंटेंट के दम पे अपने आप को खड़ा किया है पिछले 5 सालों में। एपिगमिया एक प्रोडक्ट है, दे मेक योगर्ट। मामा अर्थ एक एफएमसीजी कंपनी है, मामा अर्थ की सीईओ शार्क टैंक में दिखाई दी थी कुछ दिन पहले। बोट अमन was also part of Shark Tank, and नाइका फैशन, नाइका फॉर मेन, नाइका फॉर विमेन एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, मतलब मेगा करोड़ ब्रांड है। ये सारे ब्रांड्स की जब शुरुआत हुई थी तब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूजर जनरेटेड कंटेंट में इन्वेस्ट किया था। तो गाइस, दुनिया बदल रही है बड़ी तेजी से, और यहाँ पे वो चीजें आ रही हैं सामने जो लोगों ने पहले कभी सोची भी नहीं थी। तो ये है रेवोल्यूशन, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि ये आपके लिए कैसे फायदेमंद है, अब उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जो प्रोसेस होता है एडवर्टाइजिंग का वो बड़ा ही सिंपल होता है। पहले आप कुछ देखते हैं, उसके बाद उसको आप अपने मन में एनालाइज करते हैं कि हाँ मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। जब आपको लगता है कि ये चीज मुझे चाहिए तो आप इवेलुएट करते हैं कि मैं अभी खरीदूंगा या 2 महीने बाद खरीदूंगा या अभी इसी घंटे खरीदूंगा, और उसके बाद आप जाके डिसीजन लेते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि 10 सालों से पिछले, है ना, आप लोग शायद एज में थोड़े छोटे भी हो हमसे कंपैरेटिवली, बट पिछले 10 सालों से अगर आपको रियलाइज नहीं भी हो रहा है, हर दिन आपकी तरफ 5,000 से भी ज्यादा स्पॉन्सर्ड मैसेजेस भेजे जाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स भेजे जाते हैं। ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप 5,000 मैसेजेस को अपने दिमाग में याद रखो। अरे हमें तो इतना भी याद नहीं रहता कि नाश्ते में हमने क्या खाया, राइट। तो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट योर माइंड स्पेस ना वो कैंसिल करना शुरू कर देती है, हटाओ 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 हटाओ, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं देखना नहीं देखना। और दूसरा, आप अपने लिए ना बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर देते हो कि भैया अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है तभी मैं उसमें ध्यान दूंगा, अदरवाइज मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। और दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आप वो इंपल्स होता है ना कि चलो यार बाजार जाके देखते हैं, अब आप वो भी नहीं देखते। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना कि आपकी जो मन में डिसीजन मेकिंग है वो बड़ी जल्दी हो रही है। पहले आप एक एक महीने तक सोचते रहते थे कि खरीदूंगा खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, अब क्या हो गया है वो बिल्कुल शॉर्ट हो गई है। एक दिन में आदमी डिसाइड कर लेता है कि मुझे चीज चाहिए या नहीं चाहिए। अगर कुछ नहीं चाहिए तो आगे बढ़ जाता है, तो टाइम नहीं है लोगों के पास। ओके। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो एक व्हीकल आया है डिजिटल मीडिया के अंदर, वो ये एडवर्टाइजिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है? देखिए, एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो कंटेंट पिक्चर्स डालते रहते हैं हर दिन हर दिन हर दिन। आपको अच्छा लगता है कि कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है तो उसकी फोटोज देख रहे हैं आप, आपको नए डेस्टिनेशंस के बारे में पता चलता है, कोई नई फूड की डिश बना रहा है, कोई नई कपड़े डिस्प्ले कर रहा है, कोई नए जूते डिस्प्ले कर रहा है, कोई मेकअप डिस्प्ले कर रहा है, कोई हेल्थ इन्फ्लुएंसर है। तो मतलब ऐसे कई जॉनर्स हैं। तो वहां पे क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो यूजर जनरेटेड कंटेंट को आपके सामने पेश करता है, प्रस्तुत करता है। उससे आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर हो जाता है, क्योंकि आपके माइंड में वो कैंसिलेशन नहीं होता कि यार ये तो ऐड है हमें नहीं देखना, तो वो नहीं होता वहां पे। और सोशल मीडिया की कम्युनिटी बनती है जहां पे कि लोग आपस में बात करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक या डिसलाइक जो भी है करते हैं, जिसमें कि लोगों को पता चलता है कि अरे मेरी ओपिनियन तो छोड़ो यार, बाकी लोगों की क्या ओपिनियन। तो उसकी वजह से इमेजरी फॉर्म होती है,
और एट द एंड ऑफ द डे जो पैसा ब्रांड खर्च करता है उस पैसे का ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको मिलता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे। तो ये भी एक रेवोल्यूशन का पार्ट है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करें, एंड influencer.life हमारी वेबसाइट है। आई एनकरेज ऑल ऑफ यू टू गो एंड हैव अ लुक। इट्स कॉल्ड www.influencer.life। इन्फ्लुएंसर की स्पेलिंग इज विद अ ZR। हैव अ लुक। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जो केस स्टडीज हैं मैं कुछ डिस्कस करूंगा, पहले इंटरनेशनल फिर इंडियन। सबसे पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने 2014 में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन की थी यूएस में, जिसमें कि करीब करीब 2 लाख लोगों ने उनके लिए कंटेंट बनाया था, यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाया था, टेलिंग द वर्ल्ड कि वो कैसे मिस्टर ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं। और वो इतना सक्सेसफुल कैंपेन था कि अल्टीमेटली फिर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। फिर एक टर्म के बाद उनको हटा दिया गया, वो एक अलग बात है। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एनीबडी टुक नोटिस कि हाँ भैया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रियली वर्क्स। दूसरा एग्जांपल है जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर इज अ वेरी पॉपुलर सिंगर। ही इज फ्रॉम कनाडा। बचपन में वो बिल्कुल एक, मैं बोलूंगा, गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर नहीं थे। उनको शुरू से ही गाने बजाने का बहुत शौक था। तो उनकी जो माँ है वो, उन्होंने एक दिन वीडियो अपने मोबाइल से खींच के यूट्यूब में डाल दिया और उस पर इतने सारे व्यूज आने लगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम न्यूयॉर्क बेस्ड एक म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, इनका नाम है मिस्टर ब्रॉन, स्कूटर ब्रॉन। तो उन्होंने वो वीडियो देख लिया और उन्होंने देखा कि अरे यार ये लड़का तो बड़ा अच्छा है, इसकी तो बड़ा टैलेंटेड लड़का। उसने बुलाया जस्टिन बीबर को और विद इन अ फ्यू वीक्स जस्टिन बीबर का पहला सिंगल आ गया। और थैंक्स टू द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, जस्टिन बीबर इज प्रोबेबली वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉप स्टार्स टुडे। और इसी तरह मैं बात करूंगा काइली जेनर के बारे में। काइली जेनर जो है वो दुनिया की सबसे यंगेस्ट बिलियनर है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंस्टाग्राम को यूज किया, अपने स्टाइल स्टेटमेंट्स को लोगों तक पहुंचाया। एक उनकी यूनिक स्टाइल है लिपस्टिक लगाने की, वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि उन्होंने काइली कॉस्मेटिक्स कंपनी खोली, जो उन्होंने फिर बाद में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बागे बेची। और आज की डेट में भी नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में कई सारे ऐसे लोग हैं जो काइली कॉस्मेटिक्स को लेके पागल हैं। और उनका मेन मोटिव, जो एडवर्टाइजमेंट मोटिव है, वो कहीं पैसा नहीं खर्च करते, ना टीवी में ना आउटडोर में। वो सिर्फ अपनी एडवर्टाइजिंग इंस्टाग्राम पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन सामने आया है। इंडिया में भी बहुत सारे इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स हैं। कुछ आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तन्मय भट्ट, भुवन बम, डॉली सिंह, ध्रुव राठी, कैरी मिनाटी, सलोनी गौर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 5 सालों में इंटरनेट सीन पे जो आ गए हैं। और बिलीव मी और नॉट गाइस, these are people who are media celebrities. They are media celebrities. और इनके बियॉन्ड भी कई सारे ऐसे लोग हैं। मेरे हिसाब से there are about 30,000 people in India who are professional internet influencers who are making a lot of money by participating in this media revolution that is taking place in our country right now. कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी कुत्ती कमीनी इधर आई हो। ये क्या तेरी फ्रेंड वो नयना शिवोहम करती रहती है? अरे हमारी सिर्फ ना माता रानी है, वन एंड ओनली। तुम हो इसलिए क्योंकि माता रानी है, हमें इसलिए क्योंकि माता रानी है। मेरे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा एक बात बता, ये भाया क्या होता है? अमेरिका से पढ़ के आई है, भाड़े का एक्सेंट लेकर आई है वहां से। भाया पढ़ी एकदम हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है और भैया 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 लगाया हुआ है। भैया बोलना तो आता नहीं है उन्हें। अपने भाई को बोलना भाया। भाई को क्या बोलती है? ब्रदर। देख बहन, मैं तेरे को पहले ही बता रही हूँ, ठीक है? तू चाहे मेरे को बोल के साकेत जाके वसंत कुंज जा, मैं तेरे साथ में नहीं जाने वाली हूँ। एक्सक्यूज मी, ओके? पैसिफिक मॉल सुना है? अगर देख, तुझे घूमती रहती है ना एम्बियंस में अपना तड़ी दिखाती रहती है। ऐसे फीके पुराने कपड़े नहीं मिलते वहाँ पे, अच्छे कपड़े मिलते हैं। सबसे अच्छी ज़ारा की कलेक्शन ना सुभाष नगर वाले मॉल में मिलती है। So you guys see that ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो रेवोल्यूशन है, इसमें लोग क्या कर रहे हैं ना, अपने हिसाब से कंटेंट बना रहे हैं। अब जैसे इन्होंने कंटेंट, कुशा कपिला जी हैं, इन्होंने कंटेंट बनाया कॉमेडी का। तो कई सारे लोग कॉमेडी के ऊपर कंटेंट बनाते हैं और क्योंकि वो इतने पॉपुलर हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ब्रांड्स आते हैं उनके पास और बोलते हैं प्लीज हमारा ब्रांड आप एंडोर्स करिए। भुवन बम जो है वो इस वक्त lenskart.com के ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया में। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने 3 करोड़ रुपए की डील की हुई है, 3 करोड़ रुपए की। अब भुवन बम को कोई टीवी में भी नहीं देखता है, वो ही इज ओनली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो ये इतना बड़ा बन चुका है।
सिमिलरली ध्रुव राठी का एक कंटेंट दिखाता हूं मैं आपको। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में कुछ कॉमेडियंस के शोज को कैंसिल कर दिया गया ये कहकर कि वो बड़े हिंदू फोबिक हैं। उनके जो जोक्स हैं वो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। पहले मुनावर फारूकी, फिर कुणाल कामरा और अभी रिसेंटली कैरी मिनाटी ने एक नया यूट्यूब पर वीडियो निकाला था। उसमें कुछ एक क्लिप थी जिसको लेकर कुछ लोग धमकियां देने लग गए कैरी मिनाटी को कि लीगल एक्शन कर देंगे क्योंकि इस क्लिप में हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में आइए दोस्तों इस हिंदू फोबिया के पीछे का सच जानते हैं क्या है। In a controversial decision, the Bengaluru police have asked the Good Shepherd Auditorium to cancel the comedian Munawar Farooqi's stand-up show in light of threats from Hindu vigilante groups, which he says, Nafrat jeet gaye, artist haar gaya. After Munawar Farooqi's stand-up comedian Kunal Kamra on Twitter to announce that his forthcoming show in Bengaluru has been cancelled. Is this the India that we want? नाउ ये तो हो गई कंटेंट एंटरटेनमेंट न्यूज की बात। अब एक बार जरा देखते हैं कि ब्रांड्स जो है वो इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक पे कैसे अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं और ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो जॉनर है ये कैसे निकल के आ रहा है। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। आशु, मेरे वैलेंटाइन का प्लान बताओ। मैंने पूछा तेरे से मादर बल्ब, मैंने पूछा तेरा वैलेंटाइन का प्लान है? हाँ मैंने पूछा इस वैलेंटाइन की तेरे पास साथ है कि सिर्फ तेरा हाथ है? अरे यार तू इतना भड़क क्यों रहा है? अरे यार मैं परेशान हो गया इस वैलेंटाइन से यार। मेरी गर्लफ्रेंड उस दिन टेडी डे पे टेडी बेयर मांगते, मैं उसको टेडी बेयर दिया, बोलती और बड़ा, एक और टेडी बेयर दिया, बोलती और बड़ा, एक और टेडी बेयर दिया, बोलती और बड़ा। अभी क्या मैं खुद टेडी बेयर बन जाऊं? हाँ खुद भालू बन जाऊं? मुझसे बड़ा तो टेडी बेयर होगा नहीं। बाल उगा लेता हूं, दे तेरे बाल दे, तोन पे चिपकाता हूं। प्रपोज डे पे भी टेडी बेयर मांगती है, हक डे पे बोलती है टेडी बेयर को हक करूंगी, किस डे पे बोलती है टेडी बेयर को चुमा दूंगी, और प्रॉमिस डे पे बोलती है बेबी प्रॉमिस करो अगले वैलेंटाइन मुझे टेडी बेयर दोगे। अरे मैं बॉयफ्रेंड हूं कि मंगल बाजार के सॉफ्ट टॉय का सेल्समैन? और एक तो एक वैलेंटाइन भी आ गया अभी यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी वैलेंटाइन में उसको क्या गिफ्ट दूंगा। अरे तू इतना टेंशन क्यों कर रहा है? मीशो से मंगवा ले। अब ये कौन से टेडी बेयर का नाम है मेरे भाई? अबे टेडी बेयर नहीं है, मीशो एक बहुत बढ़िया शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे तू उसके लिए बहुत बढ़िया सी ड्रेस मंगा सकता है, वो भी एकदम बेस्ट प्राइस पे। क्या बात कर रहा है? मैं ना अभी मीशो का ऐप डाउनलोड करता हूं और उसके लिए टेडी बेयर प्रिंट की साड़ी मंगाऊंगा। टेडी बेयर, टेडी बेयर। So, these are some examples of how, without having to make advertising look like advertising, it looks like very normal content, like day-to-day life. Brands ना धीरे धीरे आपकी वो माइंड स्पेस को जो है वो कैप्चर करना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से कि अगर हमें एडवर्टाइजमेंट ना मिले तो हमें कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में तो वैसे ही पता नहीं चलेगा। बट मेरे हिसाब से दिस इज अ बेटर वे ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड इट इज डेफिनेटली ऑल्सो मोर एक्साइटिंग। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं रेवोल्यूशन के, कि तो रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा जो फंडा है वो ये है कि भाई कंपनियां बेनिफिट कर रही हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारा क्या है इसमें? व्हाट इज इन इट फॉर मी? तो यहाँ पे फैक्ट ये है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो ऑलरेडी 1000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है इंडिया में, 1000 करोड़। और यहाँ पे काम करने वाले लोग जो है वो केवल 30,000 या 25,000 लोग हैं इंडिया में, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ लोगों की है। तो यहाँ पे सिर्फ 30,000 लोग हैं जो एक्चुअली प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज, ठीक है ना, 4 लाख से 6 लाख रुपए पर एनम एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर कमाता है। अब आप बात समझिए कि इन्फ्लुएंसर जो है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग कर रहा है, वो अपनी डे जॉब भी कर रहा है।
भाई किसी कंपनी में काम करता है, अपना बिजनेस चलाता है या अपनी शॉप चलाता है या जो भी करता है, वो प्रोफेशनल है, लेकिन साथ साथ में वो कंटेंट बनाता है, पॉपुलर हो जाता है, फिर ब्रांड्स उसको अप्रोच करते हैं और उसको उसके साथ काम करते हैं। तो हमने ना यहाँ पे एक छोटी सी स्टडी की थी 2021 में, कि हमने 10,000 लोगों से पूछा जो 18 से 28 साल के बीच के लोग थे, मेल फीमेल, और ये सिटीज लाइक बेंगलुरु, इंदौर, लखनऊ, चंडीगढ़, ऐसी सिटीज में हमने पूछा कि भाई आप इंटरनेट इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं क्या? तो रिजल्ट देखिए क्या आया। तो 10 में से 1 लोगों ने बोला कि भैया हम तो ऑलरेडी ऑनलाइन कंटेंट बना रहे हैं, हमें मालूम है ऑनलाइन कंटेंट क्या होता है, हम ऑलरेडी बना रहे हैं। 8 में से 1 लोगों ने बोला कि भाई हाँ हम इंटरनेट इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, हमको मालूम है कि इसमें यू कैन अर्न मनी, वी नो दैट दिस इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर अस एंड वी वांट टू बिकम इट। एंड 1 out of every 5 person said कि they already know somebody from their family or friends who is already an internet influencer। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक नेटवर्क तैयार हो रहा है लोगों का। कोई जरूरी नहीं है कि आप नेशनल लेवल पे जाके इन्फ्लुएंसर बने। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मुझे अगर दिल्ली की ऑडियंस लेके चलूं तो इतनी बड़ी ऑडियंस है कि आई कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी थ्रू इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग अगर मैं कंसोलिडेटेड विजन अपना रखूं। तो ये है गाइस रेवोल्यूशन ये है कि आपको अर्निंग कैपेसिटी, आपकी म्यूचुअल जो एक आपकी खुद की जो पावर है उसमें इनहेंसमेंट हो रही है, इजाफा हो रहा है। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं कि भाई ऑलरेडी इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग जो है वो 1000 करोड़ की इंडस्ट्री है, ग्लोबली ये $8 बिलियन की इंडस्ट्री है। तो मतलब एक बात मैं आपको बता दूं कि मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड में $13 बिलियन की है, और इन्फ्लुएंसर जो इंडस्ट्री है वो $8 बिलियन की है। तो मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है गेमिंग इंडस्ट्री और इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन हिंदुस्तान का है 130 करोड़, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ सिर्फ 30,000 इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेवोल्यूशन है पूरा शबाब पे अभी नहीं आया है। तो इफ पीपल लाइक यू वांट टू जॉइन दिस रेवोल्यूशन, दिस इज अ गुड टाइम टू जॉइन, बिकॉज आपका एफर्ट कम लगेगा। कोई भी चीज जब शुरुआत होती है तो उसमें घुसना आसान होता है, भी जब चीज बहुत बड़ी हो जाती है देन इट इज डिफिकल्ट टू, बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना हो जाता है कि लोग फिर नहीं कर पाते। लेकिन आज की डेट में अगर कोई इंटरनेट इन्फ्लुएंसर बनता है तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिलेगा। और जैसा कि मैंने बोला आपको कि एवरेज जो है ना 4 लाख से 6 लाख लोग रुपए कमा रहे हैं, और 500 से भी ज्यादा ब्रांड है इंडिया में जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में दिखा दिए। तो सवाल ये होता है कि डू यू वांट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, राइट? एंड एट दिस पॉइंट आई वांट टू emphasize to all the people who are watching this webinar and live session that if you are somebody who is between 18 and 28, and even if you're not between 18 and 28, internet influencing is a beautiful vocational work that you can do. Start small, and in a very short span of time you can actually start to learn how to make money from this industry. क्यों बनते हैं लोग इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स? एक तो उनका पर्सनल रीजन होता है कि भाई कई लोग होते हैं जिनको शौक होता है कि आई वांट टू बिकम पॉपुलर, फेमस, आई वांट टू बी सीन एंड हर्ड। दूसरे लोग होते हैं जो प्रोफेशनल रीजन से, आज की डेट में कई सारी कंपनीज हैं जहां पे जॉब के लिए आप अगर जाओगे, स्पेशली अगर मार्केटिंग और सेल्स में जाओगे, तो दे प्रेफर पीपल हु हैव गॉट अ गुड सोशल मीडिया प्रेजेंस, और उसके ऊपर से अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो और भी वारे न्यारे आपके। तो यहाँ पे प्रोफेशनल रीजंस की वजह से भी लोग इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो लोग देखकर सीखते हैं, लेकिन इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग कैसे करें और प्रोफेशनल इंटरनेट इन्फ्लुएंसर कैसे बने, उसके लिए एक ऑनलाइन एकेडमी हमने बनाई हुई है जिस इज influencer.life। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार जरूर आके हमारी वेबसाइट को देखें। मैं एंड करता हूं इस टॉपिक पे। 2021 में एक कंपनी है कैन रिसर्च, जो न्यूयॉर्क बेस्ड एक कंपनी है, उसने बताया है कि 2021 में इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग हैज बिकम द हॉटेस्ट न्यू करियर ट्रेंड इन इंडिया। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं शहरों में और छोटे जगहों में भी जो इंटरनेट इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, और ये रेवोल्यूशन ऐसा है जो अब रुकने वाला नहीं है, ठीक है। मैं आपको बस एक छोटे से पॉइंट पे एंड करता हूं यहाँ पे कि जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उस वक्त इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री इंडिया में 500 करोड़ की थी,
और जब हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो ऑलरेडी ये इंडस्ट्री 1000 करोड़ की हो चुकी थी, मतलब डबल हो गई 2 साल में। तो आने वाले समय में दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। इसमें आपका करियर, आप जो भी स्ट्रीम चूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो आप कंटिन्यू करिए, उसी फील्ड से रिलेटेड अगर आप कंटेंट बना सकते हैं तो इट इज बेस्ट। नहीं बनाना चाहते हैं, आपको हॉबी की तरह रखना है, हॉबी की तरह रखिए, बट चूज दिस एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी अर्निंग vehicles for you in the near future. And on that note, I end my webinar, and it's fascinating to have spoken about this entire journey, and over to the moderator for taking this forward. And thank you so much once again. Thank you so much, sir, for providing such an insightful topic and thoughts to the research scholars and the academicians who connected with us online and through the different social media platforms. So we have certain questions for you. First is that, which is the appropriate social media platform for advertisement? So right now, there are 2 platforms which are doing very, very well. One is YouTube and the other is Instagram. These are the 2 most popular ones, but it depends. Like for example, कई सारे genres ऐसे हैं जहाँ पे कि लोग पढ़ना चाहते हैं. Blogging is also part of influencer. तो दुनिया में अगर बात करें, इंडिया को छोड़ दें, वर्ल्ड में ब्लॉगिंग इज द नंबर 1 डेस्टिनेशन। तो जैसे आपका ब्लॉग पोस्ट्स जो होते हैं कई सारे, वो बहुत पॉपुलर हैं। इंडिया में बात करें तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब, दीज आर द 2 बिग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो रही है। Okay. So another question is that we heard that the social media platforms pay you off if you have a number of followers, number of subscribers with you. So what is the procedure for that? Is there any particular numbers that a person needs to cross, or what is the procedure for that? Yeah. So I will answer this question in 2 parts. So first part is understand who is an influencer. So influencer is not somebody who's got millions and millions of followers. So of course those are influencers. But if you are an aspiring influencer, then you can start your journey as a professional influencer with as little as 5,000 followers also. So those people are called nano influencers. People who have got say 50,000, 60,000 followers, they are called micro influencers. People who have 100,000, 500,000 followers, they are called macro influencers. तो इसको start करना क्या है? Basically, you have to be sure about presenting content which is interesting for people to absorb. अब मतलब जैसे for example, मैं अपनी बात करूं personally, तो I am very interested in geopolitics. Now, geopolitics is something which is available by 3-4 key people, but I end up watching a lot of content which is made by unknown people also, because they present a point of view. मतलब न्यूज तो न्यूज होती है कि भाई रशिया ने यूक्रेन पे बॉम्ब गिराया, लेकिन उसकी जो बैक स्टोरी है, उसकी जो रियलिटी है, वो न्यूज में नहीं आती। वो कौन देता है? वो इन्फ्लुएंसर्स देते हैं। तो यहाँ पे वो जरूरी है। आपको क्या करना है? आपको बेसिकली अगर इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको बोलना है अपने मन में कि आप किस जॉनर के ऊपर कंटेंट बनाना चाहते हैं। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। Okay, another and the last question for today's webinar is, like most of the people in the today's era is engaged with the digital marketing, and the people thought the person who is at the top, right, earns a lot as compared to the people who are below them. So how a newcomer will overcome this situation? So when you join a corporate, when you join a company, right, as a fresher, you don't get the salary that the CEO gets, right? You get an intern's salary, then after 6 months you become promoted to next level. After 5 years you get promoted to next level. So I'm not saying that it's going to take 5 years, 7 years. This is very rapid. अगर आपने कंटेंट बनाया कुछ और वो वायरल हो गया, तो आप 1 ही साल के अंदर ट्रेनी से सीईओ बन सकते। तो यहाँ पे ये बात सच है कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो करोड़ों में कमाते हैं, जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हजारों में कमाते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है पर्सनली कि कोई अगर सीरियस है अपने प्रोफाइल को लेके और अपने करियर को लेके, और जो अच्छा कंटेंट बनाना जानता है या सीखना चाहता है, 50,000 रुपीज पर मंथ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। तो मेरे हिसाब से स्टार्ट स्मॉल, ग्रो श्योर, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आप बहुत बड़े बन सकते हैं। दिस इज समथिंग। और मजे की बात क्या है मालूम है कि यहाँ पे ना वो पुराने जमाने की वो चीज की यू हैव टू बी फेयर, यू हैव टू बी स्लिम, यू हैव टू बी ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ नहीं है। यू नो, मेकअप गया
भाड़ में, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द गुड कंटेंट दैट यू आर मेकिंग. अगर आपका कंटेंट अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो सब देखेंगे उसको, ठीक है ना. तो दिस इज अ स्टोरी. मेरे हिसाब से अगर कोई स्टार्ट करता है तो 3 months के अंदर 50,000 रुपीज पर मंथ तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं आज की डेट में, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो. और बाय द वे इसी चीज के बारे में हम अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग देते हैं कि ये कैसे करें इस चीज को. Okay. Thank you so much, sir, for today's talk. And I hope most of the people get influenced by this and going to join this as a career opportunity you are providing to them. Yes. Thank you so much, sir, for a valuable time. Thank you so much, and I wish everyone all the best. Thank you so much, sir.